Morning students, today we go through the chapter number 11, that is models. Now model auxiliary verb. Now which are the model auxiliary verbs here? Models or model auxiliary verbs are verbs which are used before ordinary verb. Ordinary verb means the main verb. Before main verb there is a model auxiliary to express permission, possibility, ability, obligation, suggestion, request and so on. They indicate the attitude, intention and mode of the speaker. मीन्स ये मॉडल ऑक्सिलरी हम नाउन्स वर्ब से पहले यूज़ करेंगे और वर्ब से पहले यूज़ करेंगे. वर्ब मीन्स द एक्शन वर्ड और द क्रिया मीन्स द वर्क दैट यू आर डूइंग, दैट इज नोन एज एक्शन वर्ड. जिसको हम काम जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं वर्ब. अब वर्ब से पहले क्या आएगा? मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी हमें क्या सिखाता है? मॉडल ऑक्सिलरी हमें ये सिखाता है कि आप वो काम अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप अच्छे से कर पाओगे. मीन्स कैन, कुड, वुड, शुड, शाल, शुड, मे, माइट, यू आर बी एबल और नॉट बी एबल, यानी कि आप काम करने की क्षमता, यानी कि आप कितने लेवल तक वो काम कर सकते हो. वर्ब से पहले हम यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी. ओके, models are words used as models are shall, should, will, would, can, could, be able to, may, might, ought to and must. These all are modal auxiliaries. Models are used to express permission, possibility, ability, obligation, advice. Suggestion means advice, promise, wish, dare, prohibition, intention, necessity, request and duty. Each and everything comes in the modal auxiliary. Means so if you are doing if you are suggesting anyone, or you are advising anyone, or you are requesting anyone, this all comes in modal auxiliary. Modals are always formed by main verbs as they cannot stand on their own in a sentence. Before main verb there is a modal auxiliary, and without modal auxiliary, without main verb, modal or modals cannot stand. modals auxiliary बिना verbs के बिना sentence में नहीं आती. ये sentence का meaning ये है. Now see the example. He should visit his grandmother regularly. I may take leave for a week. Now see here, visit is a verb. I may take leave. Now leave is a take is also one type of verb. In question tags, modals can be used alone. क्वेश्चन टैग में जो होते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप के जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसमें हम मॉडल एक्सुलरी यूज करते हैं. इन क्वेश्चन टैग मॉडल्स कैन बी यूज्ड अलोन, यानी कि क्वेश्चन टैग में ओनली मॉडल्स होते हैं, उसमें हम वर्ब की यूज नहीं करते. यू कैन मेक एन एप्पल, कांट यू, दिस इज अ क्वेश्चन टैग. Modals are not affected by change in the person, first person, second person, third person. Modal never depend upon the first person, second person, third person, or the number, singular, plural of the object. It never depends upon the whether the sentence is in singular form, plural form, or third person, second person, or whatever. It never depends upon the tenses. It never depends upon the first person, second person or third person, but it depends upon the tenses. Tense पे depend करता है. Okay, he may come, singular. He can swim, first person. they may come, देखो सिंगुलर फॉर्म में है तो भी हमने क्या यूज़ किया? may. प्लूरल फॉर्मेट सेंटेंस से they may come तो भी हमने क्या यूज़ किया? may. तो ये हमें यही बोलता है कि मॉडल्स फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से कोई उसको लेना देना नहीं है. It is important that the main verbs after model must be in the root form. मॉडल के बाद हमेशा वर्ब कैसा होगा? रूट फॉर्म में होगा. मीन्स रियल वर्ब होगा. मीन्स V1 होगा. आपको पता है ना, V1, V2 एंड V3. मेन प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज नेवर यूज्ड विद द मॉडल. कुड यू कम हियर अर्ली, एग्जाम्पल. नाउ सी द कैन, कुड और बी एबल टू. कैन कब हमें यूज करना है, कुड हमें कब यूज करना है, और बी एबल टू हमें कब यूज करना है. नाउ सी द फर्स्ट वन, इंडिकेट्स एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि ये बताता है यू कैन डू, मीन्स आप कर सकते हो. इंडिकेट्स, ये पक्का नहीं बोलते कि आप कर ही लोगे. इंडिकेट्स एन एबिलिटी, यू कैन डू, आप कर सकते हो. कुड सजेस्ट एबिलिटी इन द पास्ट. कुड हमेशा कब यूज होगा? पास्ट. सजेस्ट एबिलिटी यानी कि कोई भी अपने काम कर सकते हो, ऐसा कुछ पास्ट टेंस होगा. पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में कुड यूज होता है. बी एबल टू इंडिकेट्स एबिलिटी टू डू समथिंग विच इज मोर पॉसिबल देन कैन. कैन से भी ऊपर, यानी कि 99% चांसेस में आपको बोलूँ कि आपका फर्स्ट रैंक आ सकता है, तो मैं बोलूँगी 90% चांसेस है कि आप ला सकते हो, तो वो कैन के ऊपर. यू एबल टू, बी एबल टू हम कब यूज करेंगे? जब चांसेस ज़्यादा होंगे. Now come to the exercise. First one, fill in the blanks with using can, could,
using can, could or be able to. First one, you have to see the bracket में क्या लिखा है, ability to do something, ability in the past. अगर ability in the past है वो सेंटेंस में लिखेंगे could. then general ability यानी कि हो सकता है, ability in the past तो हम यूज करेंगे could. ability which is more possible than can के ऊपर क्या आएगा, be able to. तो इस एक्सरसाइज में आपको 5 ब्लैंक्स करवाऊंगी, बाकी ब्लैंक्स आपको खुद करने हैं. एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ कर सकते हो, तो वे सेंटेंस में क्या आएगा, कैन यू प्ले द पियानो यानी कि तुम पियानो बजा सकते हो. सेकेंड वन, व्हेन आई वॉज यंग डैश क्लाइंब स्टेयर्स इजली, पास्ट टेंस, दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, एबिलिटी इन द पास्ट, सो कैन चेंज टू कुड. थर्ड वन, वी कैन बाय द मूवी CD rather than stand in the queue for the movie tickets, general ability means normally, so you have to use can. Fourth one, even though our car broke down we dash reach home on time, ability, general ability, so you have to write can. Fifth one, as a children she dash paint well, ability in the past, so in the past tense of the sentence you have to use could, in this sentence you have to write could. And 6th, 7th, 8th and 9th you have to do at your own. If there is a weak possibility you have to use can, and if the possibility is more than can you have to use be able to, and if the ability in the past you have to use could. Okay, now come to the next, obligation, advice and suggestion, means if you are giving advice or suggestion to anyone, at that time you have to use should, must or ought to. Now when you have to use should, use to make suggestion or give an advice when you are using when you are giving advice or suggestion. Second one, must, suggest to strong obligation, you must help your friend in need, यानी कि हमें कम करना ही चाहिए उस टाइम पे. स्ट्रॉन्ग ओब्लाइजेशन यानी कि आपको ना कोई पुअर है, कोई उसको कुछ गिर रहा है या उसके पैसे की ज़रूरत है, कुछ फूड की ज़रूरत है, तो अपने बोलते हैं हमें इसे देना ही चाहिए, हमें इसे हेल्प करना ही चाहिए. तो ऐसे सेंटेंस में हमें, ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट. और ought to, कन्वे ए सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, मीन्स आपको प्लांट, यू हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, ये क्या है, हमें करना चाहिए ना, एक एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए. इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, ought to. क्या यूज़ करेंगे, ought to. कन्वे सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी यानी कि हमारा फर्ज है. shall we, shall I are also used to make suggestion. फर्स्ट, अगर मॉरल ड्यूटी होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ought to, और स्ट्रॉन्ग ओब्लाइजेशन होगा तो हम क्या लिखेंगे, मस्ट. मेक सजेशन और गिव एन एडवाइस, हमें किसी को एडवाइस दे रहे सेंटेंस हम क्या यूज करेंगे, मे. फर्स्ट वन, ही डैश लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, मॉरल ड्यूटी, हमें ये हर किसी को ध्यान रखना है कि हमें हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखना है, तो ये हमारा मॉरल ड्यूटी है, तो क्या आएगा, ought to. सेकेंड वन, यू डैश रीड न्यूज़पेपर डेली टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, यानी कि तुम्हें अपने, मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ ना, अगर आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है, सो यू हैव टू रीड द वोकेबलरी. सो दिस इज अ सजेशन ना, वाइल सजेस्टिंग, कभी भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो हमें वो सेंटेंस में शुड यूज करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, शुड, यू शुड डू दिस. थर्ड वन, you dash submit the form before the last week of May. Now see what is compulsion. Compulsion is a new word for you. Meaning of compulsion is strong desire that you cannot control, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते उसे हम बोलते हैं compulsion. Now what is compulsion? Must dash submit the form before last week ऑफ मे के लास्ट वीक से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट करना है. स्ट्रॉन्ग डिजायर डेट यू कैन नॉट कंट्रोल, अगर उसके बाद आप करोगे तो आपको फाइन पे करना पड़ता है, कुछ भी फॉर्म नहीं लेते हैं, यानी कि आप उस काम को रोक नहीं सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट डैश मेक एफर्ट्स टूवर्ड्स ब्रिजिंग द इकोनॉमिक divide. Now necessity, this is your necessity, so you have to write must. Now 5th, 6th, 7th, 8th and 9th, 10th you have to do your own. necessity यानी कि जरूरी है करना, तो वैसे सेंटेंस हम क्या यूज करेंगे, must. may, can and could. The table show the models that asks for an express permission. may, can and could. may suggest the permission which is formal in nature and polite. may will suggest you permission. suggest permission which is less formal, यानी कि जरूरी है नहीं भी एक,
चलता है, तो वैसे सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, मे और कैन। सजेस्ट परमिशन इन द पास्ट, कुछ भी हमने पास्ट में कोई किया हो तो वहाँ पे जैसे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। जैसे हम शाल और शुड में क्या यूज़ करते हैं, शुड। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज सी।